morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home. Students, today we will start our work with a nice thought. If you can find a path with no obstacles, it probably does not lead anywhere. Students, इसका मतलब है यदि आपको कोई आसान मार्ग बिना बाधाओं का मार्ग मिल जाता है कहीं पर जाने के लिए, तो उसकी ज्यादा संभावना ये है कि शायद ये मार्ग आपको कहीं भी लेकर के ना जाए। मीन्स हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स का होना जरूरी है। यदि हम कोई काम बिना ऑब्स्टिकल्स के करेंगे, बिना परेशानियों को करेंगे, तो उस काम में हम उतनी सफलता हासिल नहीं करेंगे जितनी की एक ऑब्स्टिकल्स को पार करने वाले काम में हम प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, today we will discuss summary of chapter 2 from our book Hornbill. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Actually, the title is a statement spoken by one of the characters. This chapter is written by Jordan Cook and Alan East. Jordan Cook is actually the narrator of this chapter and Alan East must have helped him. This chapter is a travelogue. Now, what is a travelogue? A travelogue is a written piece about a travel. एक यात्रा के बारे में, हिंदी में कहते हैं यात्रा वृत्तांत, यात्रा के बारे में लिखा हुआ जो भी लेख होता है उसको ट्रेवलॉग कहते हैं। एंड दिस इज फर्स्ट पर्सन अकाउंट। यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन में नरेट की गई है। स्टूडेंट्स, let's take an introduction of the chapter. Here, Jordan Cook, the narrator of this story, planned to make a sea voyage as the duplicate of the voyage done by Captain James Cook 200 years earlier. The narrator had decided he planned his work and he made all the preparations for 16 years. Because the narrator was a 37-year-old businessman, he spent his leisure time with his wife in preparing for this sea voyage. And in this preparation, they made a ship and gave it name of Wave Walker. The ship was 23 meters long, Wave Walker. (23 meters long and weight 30 tons. जो लंबाई है वेव वॉकर की वो 23 मीटर्स है और जो वजन है वो 30 टन है। वेव वॉकर एक शिप है। नरेटर मेड दिस शिप एंड ही प्रैक्टिसेस ए लॉट विद हिज वाइफ before starting their journey, and they practices in the rough weather also as they could find, because they knew that in the southern Indian Ocean they had to face rough weather. Let's discuss about the characters of this story. Number 1, the narrator. He is a man of great commitment, courage and commitment. He proved to be the best captain as well as the best father. Number 2, Mary. She is a wife who always stood by her husband's side in all times of difficulty and considered his dream as her own. Number 3, Suzanne. She is 7-year-old daughter of the narrator. She is a brave girl, and in short, she is called Sue. Number 4, Jonathan. He is 6-year-old son of the narrator. He is a brave boy. He is not afraid to die because he thinks if he died with his family there is no problem. Number 5, Larry Vigil. He is an American crewman. Number 6, Herb Sessler. He is a Swiss crewman. Students, let's start the summary of the chapter. The narrator planned his voyage very carefully and made preparations.
नरेटर ने योजना बनाई बड़ी सावधानी से, और उसके साथ में जो प्लान तैयारियां थी, प्रिपरेशंस थी, वो भी की। क्या क्या प्रिपरेशंस की? उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर के एक जहाज बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा वेव वॉकर। वेव वॉकर मीन्स क्या है? जो लहरों के ऊपर आसानी से जा सके, जो कि 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन वजन था जिसका। और ये जो शिप थी टोटली वुड लॉग से बनाई गई थी, लकड़ी के फट्टों से बनाई गई थी, लकड़ी से बनाई गई जहाज थी। नाउ दे प्लान दैट दे हैव टू विजिट फॉर 3 years, they have to complete this voyage 3 years। 3 साल में उन्होंने पूरी करनी थी। अब यात्रा की तैयारी बनाते हैं कि उन्हें स्टार्ट करनी है कहां से? प्लाईमाउथ से। प्लाईमाउथ सीपोर्ट इंग्लैंड से वो स्टार्ट करते हैं और उनकी योजना है कि वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जो कि टोटल जो दूरी बनेगी वो है 2,55,000 किलोमीटर्स। प्लाईमाउथ टू ऑस्ट्रेलिया, प्लाईमाउथ टू ऑस्ट्रेलिया 2,55,000 किलोमीटर्स की यात्रा का उन्होंने योजना बनाई और उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की जुलाई 1976 में प्लाईमाउथ से, जो कि इंग्लैंड का शीपोर्ट है। अब जो उनकी यात्रा का पहला फेज था, फर्स्ट पार्ट था, उसमें उन्होंने 1,05,000 की जो यात्रा है वो उन्होंने पूरी की बड़ी प्लेजेंटली, बड़ी खुशी पूर्वक। कोई भी समस्या उनको नहीं आई थी, क्योंकि अभी वो पूरे परिवार के साथ हैं, यात्रा स्टार्ट की है और उनको पता था कि जिस एरिया में वो यात्रा कर रहे हैं वो कोई परेशानी वाला क्षेत्र नहीं है। अब पहला जो फेज है 1,05,000 का, उन्होंने खुशी पूर्वक पार कर लिया और पहुंच जाते हैं केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका केप टाउन पहुंचने के बाद, क्योंकि नरेटर जानता था कि आगे उन्हें यात्रा करनी है साउदर्न इंडियन ओशियन में, और जो कि संसार के सबसे रफेस्ट सी में से एक समझा जाता है, माना जाता है। मींस यहाँ पर जो साउदर्न इंडियन ओशियन है सबसे अधिक तूफान आते हैं। तो अब केप टाउन पहुंचने पर उन्होंने 2 हेल्पर्स ले लिए, लैरी विजल जो कि अमेरिकन था, प्रोफेशनल सेलर है, और दूसरा हर्ब शेजलर जो कि स्विट्जरलैंड का था और ये भी प्रोफेशनल सेलर था। ये हेल्प के लिए ले लिए गए केप टाउन से। अब उन्होंने अपनी आगे की यात्रा स्टार्ट की। यहाँ से आगे चलने पर जब वो 3,500 किलोमीटर ईस्ट साइड में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के कुछ मौसम है, वेदर है, वो खराब हो जाता है और खराब मौसम में भी वो सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर, क्रिसमस का डे, बड़े अच्छे से। अब क्रिसमस मनाया, एंजॉय किया। उसके बाद न्यू ईयर भी उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया और 2 जनवरी को 2 जनवरी को उन्होंने देखा कि मौसम बड़ा खराब हो रहा है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। उनका जो शिप का मास्ट है वहां तक लहरें उठ रही हैं, जो कि 15 मीटर की ऊंचाई की लहरें हैं, जो कि उनके लिए एक डरावनी चीज थी। अभी वो थोड़ा आगे चलते हैं तो पाता है, नरेटर ने देखा कि उनकी जहाज के बिल्कुल पीछे एक बहुत अधिक डार्क काले रंग का क्लाउड नजर आ रहा है, जो कि क्लाउड नहीं था, एक लहर थी जो कि वर्टिकल बहुत ही ऊंची थी। अब उन्हें डर था ऊंची लहरों का और वो अब उनके सामने था। आगे बढ़ते जाते हैं, तूफान उनका पीछा करता है और वो अपनी जहाज की स्पीड को कम करने के लिए, शिप की स्पीड को कम करने के लिए जो रफ वेदर के शेल्स हैं उनको गिरा देते हैं, पर्दे हैं उनको गिरा देते हैं, ताकि जो जहाज की स्पीड है वो कम हो जाए। इस तरह से वो काम करते हैं। फिर अपने जो लाइफ प्रिकॉशंस हैं, जीवन रक्षक जो चीजें हैं वो अपनाते हैं।
उनमें वो सभी लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, शिप को बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध देते हैं, मजबूत प्लास्टिक की रोप से उनके पास, उनसे बांध देते हैं। जो जिब है, जिब क्या होता है, जो शेल है रफ वेदर में चलाने के लिए नाव को, वो उसको भी गिरा देते हैं और सारी सावधानियां बरती जाती हैं। अभी जब वो ये कर चुके हैं 3 जनवरी को, तो जो सी है उसका वेदर और बदतर हो जाता है। अब उन्हें उम्मीद है कि शायद कुछ मौसम सुधरेगा, बट मौसम में बदलाव आया, परंतु वो पहले से भी बदतर हो गया। मौसम और बदतर हो जाता है। अब वो देखते हैं बिल्कुल उनकी शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लाउड है, वो आ जाता है और एक प्रचंड धारा, टोरेंट बोला गया है जिसको, एक प्रचंड धारा पानी की फूट पड़ती है जहाज के ऊपर ही, जो कि हरे और व्हाइट रंग का, ग्रीन और व्हाइट वाटर की प्रचंड धारा जहाज के ऊपर फूट पड़ती है और ऐसे लगता है जैसे जहाज डूब ही जाएगा। अब लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं और एक लहर की वजह से जो नरेटर है वो जहाज से बाहर गिर जाता है। नरेटर जहाज से बाहर गिर जाता है। अब वह अनुभव करता है कि वह मरने वाला है, वह डूबने लग रहा है और वह बेहोश होता जा रहा है। परंतु तभी एक और लहर आती है जिससे वह, उसका सिर पानी से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी जहाज है वो पलटी हुई है। वह किसी तरह जहाज के अंदर आ जाता है, क्योंकि वह रस्सियों से बंधा हुआ था, लाइफ जैकेट उसकी अटैच थी शिप से। अब आ जाता है और कोशिश करके, संघर्ष करके वो पहुंच जाता है जो स्टीयरिंग व्हील है उसके पास। अब स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेता है, देखता है पानी पानी भरा हुआ है शिप के अंदर। अब जो जहाज के नीचे का ढक्कन है वो खुलता है और वहां से मैरी, जो कि उसकी वाइफ है, वो नजर आती है और वो बोलती है कि नीचे भी पानी भरने लग रहा है, हम मरने वाले हैं। तो वो मैरी को कहता है कि हाँ देख रहा हूं मैं। और फिर वह मैरी, उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो स्टीयरिंग को छोड़ करके जाए। फिर मैरी को बुलाता है कि तुम स्टीयरिंग को संभालो। मैरी आती है और स्टीयरिंग को पकड़ लेती है। अब नरेटर जाता है, देखता है कि कहाँ से छेद हुआ है, पानी कहाँ से भर रहा है। तो पहले वह बच्चों के कक्ष में जाता है, बच्चों के हालचाल जानने के लिए गया, बच्चों को रिलैक्स फील कराने के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा, बच्चों से पूछा कि तुम ठीक हो? बच्चों ने कहा ठीक है। जबकि जो सुजैन है उसको चोट लगी थी, हेड पे, सर पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से एक बड़ा सा फोड़ा सा स्वेलिंग आ गई थी उसकी आंखों के ऊपर। परंतु नरेटर के पास इतना वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता कि वो उसको ध्यानपूर्वक देखे, उसकी तरफ ध्यान दे, उसको संभाले। और वो निकल पड़ता है और जाकर के देखता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब उसने देखा कि जहाज में पानी भरा हुआ है और जहाज में जो टीन्स थे, सामान खाने के पैकेट थे, डोल्स थी, गुड़िया थी, वो सभी पानी में तैर रही थी। और लैरी और सेजलर दोनों पानी को पागलों की तरह पंप करने में लगे हुए थे, पानी को जहाज से बाहर निकाल रहे थे। दोनों मेहनत कर रहे थे, बट क्योंकि जहाज का कचरा है वो पानी में मिक्स हो गया था, इसलिए जो उनके पंप है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब एक और इलेक्ट्रिक पंप था जिसको नरेटर ने ट्राई किया, परंतु वह भी ब्लॉक हो गया, नहीं चला। अब उसे याद आया कि जहाज के नीचे वाले पार्ट में एक एक्स्ट्रा पंप रखा हुआ था इलेक्ट्रिक, और वो ला करके उसने जोड़ा, जिससे पानी बाहर निकलने लगा। कुछ जो स्थिति थी वो काबू में आ जाती है। अब 4 जनवरी का दिन आ जाता है और वो सोचते हैं कि कुछ मौसम में बदलाव होगा, परंतु कहीं पर भी राहत की सांस नहीं मिलती है। जहाज में पानी का स्तर बढ़ता जाता है और नरेटर और दोनों जो सहायक थे वो मिलकर के, लैरी और हर और नरेटर, तीनों रात्रि में पूरी रात पानी को बाहर निकालने में लगे रहते हैं। 2-2 घंटे का रेस्ट लेते हैं बारी बारी और पानी को पागलों की तरह बाहर निकालते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको लग रहा था जहाज डूब जाएगी और सभी मर जाएंगे। ऐसा हो जाता है। 4 जनवरी का दिन रात ऐसे ही निकल जाते हैं। अब थोड़ा कंट्रोल में आता है, पानी का लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है और जो मैरी है उसको भी कुछ खाने के लिए मांस मिल जाता है, बिस्किट मिल जाते हैं। और 36 घंटों बाद सभी ने कुछ खाया था, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। कुछ खाने पीने के बाद फिर से वो अपने काम में जुट जाते हैं, पानी के लेवल को कंट्रोल में करने के लिए लगे रहते हैं। और इस तरह से 5 जनवरी आ जाती है। अब
नरेटर अपना जो चार्ट है, मैप है, उसको देखता है। बीच में वो ट्राई करता है हेल्पलाइन के लिए, परंतु कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है क्योंकि वो रिमोट एरिया में पहुंच चुके होते हैं। चार्ट देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक आइल एम्स्टर्डम नाम का कोई छोटा सा द्वीप है। अब वो द्वीप 65 किलोमीटर का द्वीप है और जो कि उन्हें ढूंढना है 1,55,000 के विशाल सी में। जो दूसरा पार्ट जो सी का था वो 1,55,000 का था, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं एक छोटे से 65 किलोमीटर के द्वीप को 1,55,000 किलोमीटर के सी के अंदर। बड़ा मुश्किल था, परंतु उसे उम्मीद लगती है कि शायद हम पहुंच जाएंगे इस सी तक 6 जनवरी तक। 6 जनवरी की शाम को 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, मौसम में थोड़ा सुधार आता है और नरेटर है वो चला जाता है सोने के लिए, झपकी लेने के लिए। वो सो जाता है। अब दोनों लैरी और हर्ब अपना काम करते रहते हैं कंटिन्यू, और जहाज है वो चलता रहता है। अब नरेटर ने अनुमान लगाया था कि 5 बजे तक ऐसे ही चलते रहे तो हम एम्स्टर्डम पहुंच जाएंगे, परंतु जब उसकी आंख खुली तो 6 बज चुके थे। अब उसने सोचा कि अब तो ऐसे रफ वेदर में वापस जाना भी मुश्किल है और हमने तो एम्स्टर्डम को खो दिया है। परंतु तभी वहां पर जॉन और शुई आते हैं। जॉन और शुई हैं वो अपने फादर को कहते हैं कि हम आपको गले लगाना चाहते हैं। अब फादर है वो बताता है कि क्या हुआ, तो बच्चे बताते हैं कि आपने वो काम कर दिखाया जो आप सोच रहे थे। क्या कि आपने वो एम्स्टर्डम नाम का द्वीप है वो खोज लिया है। अब इससे पहले जो सू है वो एक कार्ड बनाती है, उसमें वह लिखती है कि आप संसार के सबसे अच्छे फादर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब बच जाएंगे, आप हमारे लिए अच्छा करेंगे, जो कि एक भावुक कर देने वाला कार्ड होता है। इसी दौरान शू के कार्ड के बाद जॉन है वो अपने फादर से पूछता है, फादर इफ वी आर गोइंग टू डाई, एंड फादर रिप्लाइज want to make him relax, and he replies that we are not going to die, but son replies that if we are all together I am not afraid to die। बेटा क्या कहता है, यदि हम सभी साथ हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है। यहाँ पर दोनों बच्चों की बहादुरी दिखाई है। अब बच्चे खुश होते हैं कि उनके फादर की समझदारी से वो एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। 6 जनवरी को शाम 6 बजे वो द्वीप पर पहुंचते हैं और रात्रि का टाइम वहीं पर बिताते हैं। अगली सुबह जो द्वीप है 65 किलोमीटर एरिया का है और वहां के जो हैबिटेंट है, निवासी हैं, वो केवल 28 मेंबर्स हैं। वो सभी आ जाते हैं उनका वेलकम करने के लिए। अब बाद में नरेटर बताता है कि शू जिसने छिपाया उसके हाथ में भी बड़ी चोट लगी थी जो उसने नहीं बताई थी, और उसके सर पर इतनी अधिक चोट थी, उसकी आंखें इतनी स्वेलिंग कर गई थी कि बिल्कुल पतली पतली नहरों वो दिखाई दे रही थी, और बाद में काफी सारे ऑपरेशन उसके करने पड़े। उसके सर पर जो 6 ऑपरेशन किए गए, जो उसके सर पर चोट लगी थी उससे सर के अंदर ब्लड के क्लोट्स बन रहे थे, उनको हटाने के लिए 6 बार ऑपरेशन के बाद शू का इलाज हो पाया था। और इस तरह से नरेटर बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी इस यात्रा को पार किया और सभी ने मिलकर के काम किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। एक तो सबसे पहले कि सभी एक साथ थे, मिलकर के काम कर रहे थे, एक दूसरे को करेज दे रहे थे। तो यहाँ से हमें टीम वर्क की भावना का पता चलता है कि हमें एकजुट होकर के काम करना चाहिए, टीम वर्क में विश्वास रखना चाहिए। कभी भी हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं सोचना चाहिए या एक दूसरे को कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर एडवेंचर की है कि हमें कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, अपना जो साहस है वो नहीं छोड़ना चाहिए,
हमेशा साहस को बनाए रखना चाहिए. इफ वी फाइट विद करेज देन डेफिनेटली वी विल विन. यदि हम साहस के साथ फाइट करेंगे तो निश्चित तौर पर ही हम जीतेंगे, जीत हमारी होगी. जैसे कि यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स ने मिलकर के साहस के साथ एक दूसरे का साथ दिया और आखिर में वो ऐसे तूफान से बाहर निकल पाए जो कि उनकी जिंदगी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई थी. वहां से भी वो बच करके निकल पाए. स्टूडेंट्स, we have discussed this chapter summary. I hope it is clear to you. Thank you.